before we begin, I tell you what we will be doing in this. In the current affairs class, we will not be only reading the current affairs. Okay, we will not be reading only current affairs. We will be reading current affairs on the basis of their importance in the prelims examination. We'll be reading the topics on the basis of their importance in the prelims examination. Because in UPSC syllabus, क्या आपने syllabus देखा है? Current affairs का syllabus, have you gone through the syllabus? Have you gone through the syllabus? Current affairs का syllabus क्या है? देखा है आप लोगों ने? Yes, no, हमें कोई मतलब नहीं है. Very good. देखा है नहीं देखा है? किसी ने देखा करंट अफेयर का सिलेबस? सर करंट अफेयर मेंशन नहीं है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट मेंशन है वहां पे. ऐसा कुछ नहीं है कि यहां से यहां तक करंट अफेयर्स आने हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है. And UPSC is very particular what it has provided in the syllabus. UPSC is very particular about what it has provided in the syllabus. तो मिसकंसेप्शन नहीं रखेंगे कि 1 साल के कर लें, 1.5 साल के कर लें, 2 साल के कर लें, 50 साल के कर लें या 6 महीने कर लें. ठीक है, ये नहीं कि 6 months के कर लें will it be sufficient, 1 year कर लें will it be sufficient, 1.5 year कर लें will it be sufficient. We do not know from where UPSC will ask the question. What we'll do, whatever is in news, be it national. Acha, which is the sister city of Tokyo? Which is the sister city of Tokyo in India? टोक्यो न्यूज में था, टोक्यो न्यूज में था, बताओ. विच इज द सिस्टर सिटी ऑफ टोक्यो इन इंडिया? नाउ द क्वेश्चन कम, बनारस इज द सिस्टर सिटी ऑफ टोक्यो इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स? बनारस इज द सिस्टर सिटी ऑफ टोक्यो इन इंडिया. वेरी गुड. अगर बनारस है तो फिर क्योटो क्या है? आप लोगों को तो ऐसा तो नहीं लगता कि ये मन करता है 5 लेटर्स चूज के मैं कभी उसको टोक्यो बोल देते, कभी क्योटो बोल देते, ऐसा तो नहीं लगता आपको? ये 5 ही लेटर्स हैं, इन्हीं को इंटरचेंज करके आज जो है 5 लेटर उठाए, आज एक क्योटो हो गई, आज 5 उठाए आज ये टोक्यो हो गया. ऐसा तो नहीं लगता? दे आर सेपरेट cities. So sister city of Varanasi is not Tokyo, it is Kyoto. So this is how question may come. Up sister city agreement was few years back. The sister city agreement was few years back, but the question might come this year also. So the national and international events are important. National and international events are important. Okay. So whatever is important from the international point, even if it was 5 years back, it will be important. Okay. So we need to know the background of it. Be it in 2011, UPSC can ask it. Are we clear? Yes, no. So farm bills, will they be important? Definitely they will be important. Citizenship Amendment Act, will that be important? Yes, it will be important, even though it was in 2019. Your current affairs, if you demarcated that we'll be doing 1.5 years, so CA will not be included because it was passed in December. हमारे 1.5 year तो पहले खत्म हो जाएगा, but UPSC का ऐसा कोई demarcation नहीं है. So be very clear, we are not having a current affairs class for this much time period or this much time period or this much time period. Okay, we are having our classes dedicated to only this time period. हमारी क्लास इसलिए है. Are we clear? We are not reading current affairs, we are reading towards our goal of clearing prelims. Now whatever it takes, we'll be doing that. Are we clear with this? Because we all have this misconception. मुझे पता था, क्योंकि थोड़ी देर आप बोलोगे कितने टाइम पीरियड के सफिशिएंट है करंट अफेयर्स, कितने पढ़ने है ना. So nothing is sufficient, and जितना आपको पढ़ना था पढ़ चुके हो. अब आप हम पे छोड़ दो, आपको बस क्या करना है, जितना बताए उतना रिवाइज करना बस.
ठीक है, खुद से सिर्फ बेसिक करने हैं जितना हम कर चुके हैं, खुद से अब करंट अफेयर्स 2-3 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल विन किया है? नीरज चोपड़ा, विच मेडल ही वन? जल्दी बताओ। गोल्ड। गोल्ड, वेरी गुड। अब इसको x जगह से, y जगह से, z जगह से, a जगह से, b जगह से, c जगह से, अब आपसे हमने 6 जगह से करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए। कुछ बेनिफिट है इस चीज का? गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा, यहां भी गोल्ड ही सर जिताएंगे। कुछ बेनिफिट, हाँ सर कुछ बेनिफिट नहीं मिला, है ना, यहां भी गोल्ड, हर जगह गोल्ड ही जीता। So what we have to do, for facts we do not have to read it from so many places. Read it from one place, revise. Rather than if you revise the X current affairs booklet 6 times, you may tend to remember other things. For example, X जगह पढ़ा, नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा मेडल जीता था? कौन से ईयर में? नीरज चोपड़ा ने 2016। हाँ जी, जेवलिन थ्रो। नहीं बेटा, मेडल जेवलिन थ्रो नहीं होता, मेडल गोल्ड, ओलंपिक्स। नहीं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज होते, 3 ही बने अभी, जेवलिन वाला नहीं बना। ठीक है, हाँ अब समझिए ये क्वेश्चन। अभी आप एक्स से पढ़ेंगे तो चांसेस है कि आप इतना डीप में जान पाए। यहां पे तो आपने 6 जगह से पढ़ा, लेकिन ये नहीं पता 2018 कॉमनवेल्थ में विच मेडल डिड ही विन, 2016 ओलंपिक्स में क्या जीता थे। तो एक जगह से बार बार पढ़ेंगे तो ही तो याद रहेगा। Are you getting my point? Read it from one place, revise and re-revise. तभी आपको पता लगे 2018 कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड था, 2016 में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तब ऐसी तभी तो पता लगेगा जब बार बार पढ़ेंगे। और यूपीएससी यहीं से कैच लेता है। यूपीएससी डज नॉट वांट यू टू नो करंट अफेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूपीएससी वांट यू टू नो समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट टॉपिक। यूपीएससी नहीं चाहते कि आपको इतना याद हो जाए कि आप अपनी खुद से बुकलेट निकले जो बस स्टैंड पर बिकने लग जाए करंट अफेयर्स की। नो, यूपीएससी डज नॉट वांट दैट। यूपीएससी वांट्स यू टू जस्ट गैदर द इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ये चीज समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब हमारे करंट अफेयर्स हम किस तरीके से करेंगे? यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी, एंड करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इजीएस्ट टॉपिक है पॉलिटी। It is the most important and it is the easiest one. Why? Because if you have your basics strong, you just need to add a little bit in the current affairs. Because in polity ऐसा नहीं होगा कि कोई extraordinary नई चीज आ जाएगी जो आपने नहीं पढ़ी हो. So it will be very easy. So we'll begin from polity. उससे क्या होगा? We'll revise polity side by side. We'll be dealing our current affairs. Then we'll switch to environment, a dedicated current affairs topic where most of your focus should be on current affairs rather than the basics. Then again we'll shift to some topic where it will be light for you, so that side by side you continue with your basics and you are doing your current affairs. अब एक चीज और समझिए, हम लोग गलती क्या करते हैं? करंट अफेयर्स, हाउ मेनी डेज आर सफिशिएंट टू रीड करंट अफेयर्स? कितने दिन करंट अफेयर्स पढ़ लेना चाहिए, काफी रहेगा? If you have 2 months, how much time is sufficient for your current affairs preparation? आप लोग बोल सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। 1.5 year. 1.5 नहीं, 1.5 year के तो करंट अफेयर्स है। अब इस 2 months में से कितना टाइम करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को देना चाहिए हम लोगों को, ये भी तो पता होना चाहिए। नहीं पता? जितनी देर क्लास चल रही है प्लस उसका रिवीजन, उसके अलावा आप करंट अफेयर्स को कोई टाइम नहीं देंगे, ठीक है? उसके अलावा यू विल नॉट बी गिविंग एनी टाइम टू करंट अफेयर्स. व्हाई? बिकॉज पेपर is not made by current affairs. Paper will only contain important topics from current affairs. अब आप क्या करेंगे? जो हमने क्लास में पढ़ा, जो बेसिक टॉपिक उस दिन कवर हुए हैं, you will revise those basic topics.
so that your base, your one particular subject and current affair both are revised simultaneously. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बिकॉज हम जनरली क्या करते हैं, करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहते हैं और फिर हम बोलते हैं कि गलती कहां हो रही है हमारे प्रीलिम्स क्लियर करने, है ना। एंड लास्ट के 15 डेज हम येलो कलर की बुकलेट्स कुछ आती है वही पढ़ते रह जाते हैं लास्ट के 15 मिनट्स और सोचते हैं यहीं से पेपर आएगा और हमारा क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि बेटा वहां से पेपर नहीं आता। अगर वहां से पेपर आएगा, वहां से पेपर आएगा तो बुकलेट्स आपको फ्री में थोड़ी मिलेंगी, वो तो सोने के भाव बिकेंगी। वो गोल्ड कलर इसीलिए है ना कि सोने के भाव बिकनी चाहिए अगर वहां से पेपर आएगा तो। समझ में आ रहा है? Why they are providing it for free? Because आप लोग पढ़ते रहेंगे, फिर अगले साल फिर खरीदेंगे वही बुकलेट, क्योंकि सिर्फ उनको पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा ना। ये आपको झटके खा खा के नहीं सीखना है, पहले अटेम्प्ट में समझ लेना है कि करंट अफेयर्स सिर्फ हमारा पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, एनवायरमेंट करेंगे, उसके आगे आपको बताते रहे। वेरी गुड, अब शुरू करें, बहुत हो गया। कोई और डाउट हो करंट अफेयर से लेके तो बताइए, अदरवाइज वी आर बिगिनिंग विद आवर प्रिपरेशन। Any doubt you have, basic doubt, any basic doubt regarding the prelims preparation? सर साइंस एंड टेक के लिए सर, साइंस एंड टेक करंट में जब करेंगे ना तब डिस्कस कर लेंगे। साइंस एंड टेक में देखो बायोलॉजी वगैरह नहीं पढ़नी, साइंस एंड सर टेक एक और है एक एक सर, करके कॉमन एक करके। बायोलॉजी बहुत सालों से पेपर में नहीं आई है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन क्या आता है, टेक्नोलॉजी से मोस्टली आता है। जनरल साइंस यूपीएससी is not asking in last few years. I'm not saying UPSC will not ask, because हो सकता है इस साल यूपीएससी जो है भर भर के पूछ ले, लेकिन if we look at the pattern, UPSC has not asked biology, chemistry, physics in long time. UPSC is only asking technology. That we will be covering in our current affairs, है ना। बस, और कोई और बेसिक, राहिल बताइए क्या डाउट है आपका। सर कॉमन मिस्टेक्स कैसे एलिमिनेट करें सर, बहुत ज्यादा हो रही है सर। कंसेप्चुअल मिस्टेक्स तो फिर भी कम है सर, मगर जो कॉमन मिस्टेक्स है वो बहुत ज्यादा ब्लंडर हो रहा है उसमें। देखिए, कॉमन मिस्टेक का सिर्फ एक ही रीजन होता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं। जैसे अब बताते हैं, अभी कॉमन मिस्टेक क्या थी आपकी? कॉमन सर लाइक जो बहुत पढ़ा हुआ भी है मगर ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी में निकल जाता है ना, वो थोड़ा वही रह तो जाता है। है। आपसे हमने पूछा था मेडल कौन सा मिला, आपने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं सुना। मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। सबसे बड़ी मिस्टेक दैट यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अगर क्वेश्चन आप ठीक से रीड करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग सबकी कम हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन ठीक से रीड करेंगे ना तो नेगेटिव मार्किंग सबकी कम हो जाएगी। क्यों? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछे क्या न्यूज में चल रहा है, चलो एग्जाम्पल है, लखनऊ में क्या हुआ सबको पता है ना। वेरी गुड, लखनऊ में क्या हुआ सबको पता है। क्या हुआ लखनऊ बताइए, सबने हाँ बोला। क्या हुआ लखनऊ बताइए। सबने हाँ बोला लेकिन आंसर नहीं, बस यही गलती। लखनऊ में क्या हुआ कि अब आपने पूछा ही नहीं किस सेंस से पूछा। लखनऊ में भैया हिस्टोरिकली बहुत कुछ हुआ है, लखनऊ में पॉलिटिकली भी बहुत कुछ हुआ है, इकोनॉमिकली भी बहुत कुछ हुआ है। अब हमसे पूछे लखनऊ में क्या, हम बोलेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंडर कुछ हुआ है। समझे? तो इट मींस द बेस्ट वे to clear the examination is first to have conceptual clarity, and second, read the questions properly, listen to the questions properly. If you do that, you will not make negative marking. You will not make negative marking. और बस नेगेटिव मार्किंग में 50 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, नेगेटिव मार्किंग के बिना 55 पे सिलेक्शन कर लोगे। 110 marks is a safe score. As per the present scenario, the 100 is also a safe score. For that, you just have to do 50 correct answers. ठीक है, बाकी धीरे धीरे आपको बताते रहें कैसे करना है। कोई और डाउट, बेसिक डाउट कोई और किसी का बिफोर वी बिगिन? कोई और बेसिक डाउट? यस, नो? वेरी गुड। नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, देन आई विल टीच यू करंट अफेयर्स। उससे पता लगेगा कितना आपको बेसिक याद है।
ठीक है, वेरी गुड. Parliamentary privileges are mentioned in which article of the Constitution? Privileges are mentioned in which article of the Constitution? फर्स्ट क्वेश्चन आपका. ऑप्शन भी दे देते, क्या होगा ऑप्शन नहीं दे रहे हैं पेपर में तो ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन दे देते हैं. 102, 104, 105, 107. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. 100 बताइए. A, B, C, D. Everyone has to participate. Everyone has to come out of their मीठी मीठी नींद. 105. 105. Five. 105. Very good. पहला क्वेश्चन हो गया, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से कुछ न्यूज में चल रहा था, क्वेश्चन आ सकता है. वेरी गुड. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू हु ऑल? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू हु ऑल? ऑप्शंस देते हैं. एमपीज, एमएलएस. ऑप्शन ए एमपीज, ऑप्शन बी एमएलए, ऑप्शन सी मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी ऑल. सर एमपी पार्लियामेंट है तो सर मेंबर तो पार्लियामेंट को ही दिया जाएगा ना. नहीं, आंसर बताओ फिर हम बताएंगे. सर एमपी ऑल. एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वेरी गुड. आप बोल रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सबके पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल 194 देखेंगे एक बार सब लोग. शाबाश, सब लोग आर्टिकल 194 खोल के देखेंगे. अगर किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नॉट दैट इम्पोर्टेंट, तो इसका मतलब आप लोगों के पास नहीं है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, अगली बिग बिलियन सेल में कॉन्स्टिट्यूशन भी ले लेंगे, वरना ऐप होती है फ्री की, डाउनलोड कर लेना. आर्टिकल 194 पढ़ेंगे. लेजिस्लेचर नहीं, 194. ठीक है. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है ना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट इज नॉट ओनली अ टर्म, पार्लियामेंट इज द मॉडल ऑफ गवर्नेंस दैट वी हैव चोजन. इट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट वी हैव चोजन. पार्लियामेंट is a concept, it is not a building. So MPs under 105, ML under 194. Ministers also have parliamentary privileges. Ministers also have parliamentary privileges. ठीक है, it is specifically provided that the ministers, and in addition to minister कौन? Option A AG, option B CAG, who also have parliamentary privileges. अच्छा ये बताइए, आपके घर में मेहमान आए, ठीक है, किसको ज्यादा इज्जत दोगे, एजी या सीएजी? जल्दी बताओ. हाँ, सर बी. बी. क्यों? अच्छा, एजी, एजी को ज्यादा इज्जत नहीं मिलेगी. एजी लो, चाय पियो, पानी पियो, है ना. तो एजी, एजी बोल रहे हैं तो सब सुनेंगे, है ना. याद करने का तरीका. सीएजी नहीं है. सीएजी तो जब आप कुछ घपला करेंगे तब उनके पास जाएंगे, उनके तब सुनेंगे ना. पोस्टमार्टम ट्रीटमेंट होता है ना सीएजी का, तो पहले नहीं सुनेंगे, उनकी बाद में सुनेंगे. दैट इज व्हाई सीएजी डज नॉट हैव द राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट. यानी कि द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नॉट ओनली एक्सटेंड ओनली टू एमपीज, द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नॉट ओनली एक्सटेंड टू एमएलएस, दे आल्सो एक्सटेंड टू मिनिस्टर्स. मिनिस्टर्स ऑफ लोकसभा या राज्यसभा? मिनिस्टर्स ऑफ लोकसभा की राज्यसभा? जल्दी बताओ. क्वेश्चन सबको अच्छे से सुनना है, ठीक है, बताया ना. क्वेश्चंस you have to listen properly, then only you all will have the answers. Ministers of Lok Sabha और राज्य सभा? both. both. Very good. Ministers ना लोकसभा के होते हैं ना राज्यसभा के होते हैं, ठीक है. Ministers are ministers, ठीक है. तो minister can be from राज्यसभा, लोकसभा और either of or neither of the house. ये भी तो पता है ना, ठीक है. अब एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट का आंसर दीजिए. अब person may even have a parliamentary privilege even if he or she is not a member of either of the house. True or false?
a person can have parliamentary privileges even if that member or that person is not a member of either of the house. True or false? True. Why? Ministers can either be from Lok Sabha, they can be from Rajya Sabha, but they can be no house. How many months? How many months? 6 months. 6 months. 6 months. वेरी गुड. कितने क्वेश्चन बन गए एक टॉपिक से? 3 से 4 क्वेश्चन बन गए. यूपीएससी में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ठीक है, अब आपको न्यूज बताते हैं क्या है. हम उल्टा चलेंगे. न्यूज के बाद तो आप तो समझ ही जाओगे ना कहां से आया है. तो नाउ यू अंडरस्टैंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो आपको बस टॉपिक्स नोट करने हैं जो आपको रिवाइज करने हैं फिर बेसिक्स से. So today your revision point will be parliamentary privileges. First point will be parliamentary privileges. ठीक है. Now what happened? What happened in the year 2015? ठीक है, in the year 2015 in the assembly of Kerala. ठीक है, in the assembly of Kerala, some people they vandalized the legislature. ठीक है, आपको मतलब ऐसे यकीन सा नहीं हो रहा होगा, कह रहे नहीं ये सब तो हम लोगों ने सिर्फ मूवीज में देखा, लेकिन ऐसा होता है. ठीक है, that the legislature was vandalized during the budget speech in 2015, and in that case the Supreme Court has given its verdict that vandalizing the legislature, vandalizing is the legislature will not be considered as a part of a parliamentary privilege, and anything that is done with respect to any such vandalizing the property, that will be punishable by the courts of law. अब इसका मतलब क्या है कि कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमें और समझनी है. that contains some ideas with respect to the immunity to the members. It means हमें क्या समझ में आया, there will be certain privileges which provides immunity to the members. यानी कि क्वेश्चन अब स्टेटमेंट आ सकता है, the parliamentary privileges provide immunity to the members of the parliament. True or false? Yes, certain immunity. Absolute immunity नहीं है, certain immunity है. Question has to be read properly. Question has to be read properly. यहां तक समझ में आ रहा है. तो क्या हुआ, कोर्ट ने बोला कि these people should be persecuted as a criminal. Persecuted as a criminal, even though that was within the premises of the legislature. Within the premises of the legislature, they will be punished as criminals. ठीक है. कोर्ट ने क्या बोला है कि एक तो पहली बात, parliamentary privileges does not mean that you will do any hooliganism within the premises, है ना. Second, vandalism is not a essential legislative action. अच्छा, लेजिस्लेचर में काम क्या होता है, पार्लियामेंट में अगर कोई मेंबर गया है, व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू लेजिस्लेट, टू हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, टू प्रोवाइड सच अ सिस्टम वेयर द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ whom they are the representatives is heard within the house of the parliament. तोड़-फोड़ तो पार्ट नहीं है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का. So that is why vandalism is not an essential legal action and the privileges are only for essential legal actions. ठीक है, it is only for essential legislative action. So you have privilege to say anything within the house of the parliament. Within the house of the parliament आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको. कुछ भी मतलब कुछ भी. ठीक है. Why? Because you are representing your people. It may be immoral, that will depend upon the presiding officer. लेकिन outsider cannot say that this person has used these words, so there can be a defamation case or any other case. ठीक है. Now, vandalism is not a right to protest. It's also made clear in this verdict that vandalizing any property does not include the right to protest. You are protesting, but as per the Article 19, you have the right to assemble peacefully. And that peacefully means you have also have the right to protest peacefully. And now there was a state, अब ये बताइए, Prevention of Damage to the Public Property Act 1984 was used in which of the following state recently?
The Prevention of Damage to Public Property Act 1984 was used in which of the following state recently? Bihar, Kerala, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. Bihar, Kerala, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी में यूज हुआ है, केरला में they did not use it, they just mentioned that when the Prevention of Damage to Public Property Act is applicable to the citizens, that will be applicable to the legislatures also. That will be applicable for the legislators also. समझ में आया? तो केरला में मेंशन हुआ है, यूज नहीं हुआ है, यूपी में यूज हुआ है during the unfortunate CAA protest where the protest turned violent. ठीक है, the violent protests were unfortunate, not the protest. Protest तो आपका right है, कुछ भी हो protest करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन peacefully. ठीक है, peacefully, है ना? Very good. At the same time उन्होंने बोला कि the responsibility of the legislator is to maintain public trust. ठीक है, अब parliamentary privileges क्या हैं? हम लोगों ने questions देख लिए. The Article 105 of the Constitution provides certain privileges to the people who are either members of that house, the people who are ministers, ठीक है, and the Attorney General. In the state, Advocate General. 105 is for MPs, Union Ministers, and Attorney General. 194 is for MLA, Ministers of the State, and Advocate General. You need to see the article, कौन से article से पूछा गया है. If they are clearly mentioning 105, remember, if they are clearly mentioning 105, then it will include only MPs. It will not include MLAs. It will not include Advocate General. सेम नॉलेज का देख रहे हो कैसे कैसे यूपीएस में यूज हो सकता है. ठीक है, तो 105 इज फॉर, अब ये लिख लीजिए शायद क्या, तो आप ये सारी पीडीएफ तो आई विल शेयर इट विद यू. ठीक है, पीडीएफ तो आई विल शेयर इट विद यू. एट द सेम टाइम आप लोग इसको भी लिख लीजिए. करंट में ऐसे तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे एक एक न्यूज करके फटाफट फटाफट न्यूज हम इकट्ठी करते रहेंगे, हम सब पता लग जाएगा. हम पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं. एक बात अच्छे समझ रहे हो ना? हम पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, बस हमारा और कोई पर्पस नहीं है. हमारा पर्पस ये है कि इफ वी हैव रेड दिस न्यूज, इससे क्वेश्चन आया है तो मैं गलत नहीं करना. कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया करंट से, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो हमने देखे भी नहीं होंगे, सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन जब जो देखा ही नहीं उससे गलत और सही का तो मतलब ही नहीं ना. अरे सिंपल बात है, जो आपको जानते ही नहीं, जिनके पास आपका नंबर ही नहीं है, उनके रिप्लाई का वेट थोड़ी करोगे, है ना? रिप्लाई का तो उनका वेट करोगे जिनको जानते, जिनसे जान पहचान बड़ी, जिन्होंने 2-3 बार आपके मैसेज का रिप्लाई किया, उन्हीं के तो रिप्लाई का इंतजार होता है. बस हमें ये इच्छा करनी कि वहां पे उनकी फोटो डीपी दिखती रहे, डीपी हटाना दे, समझ रहे हो, ब्लॉक ना हो जाओ, बस ये इच्छा करनी है. इसका मतलब आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है. वेरी गुड. सो 105 इट इंक्लूड्स MP, यूनियन मिनिस्टर एंड AG. MPs, union ministers, and AG. 194 includes MLAs, state ministers, and AG. AG means Advocate General. ठीक है. अब what are the privileges that they have? Privileges are that a person who is eligible for the privileges, that person cannot be arrested 40 days before the session, 40 days before the session, and 40 days after the session for a civil law, violation of a civil law. ये नहीं है कि तुम किसी को चाकू मार के फटाक से पार्लियामेंट भागा होगे. It is only for a civil law. ठीक है, it is only for a civil law. आप किसी गाड़ी पे थूक के आके पार्लियामेंट भाग के आ जाओ तो बच जाओगे. That is not a criminal offense. ठीक है. So for civil law, 40 days before, 40 days
after. ठीक है, 40 days before, 40 days after every session. The minimum number of session in a year can be, option बताओ, the minimum number of session in a year can be 2, 3, 4, 5. 2 हाँ 2 2, वेरी गुड. 3 तो नहीं है, मॉनसून, बजट, ये सब तो हमारी जो है सब कन्वीनियंस के लिए. मिनिमम 2 हैज टू बी देयर. क्यों? व्हाई? द रीजन? 6 months का गैप होना चाहिए बीच. Very good. And that gap is called as? That gap is called as recess. Very good. That gap is called as recess. ठीक है, तो पहला बहुत अच्छे समझिए, this is only for a civil. क्वेश्चन में ऑप्शन में ढंग से पढ़ना, सिविल लिखना होना चाहिए. यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि सिर्फ नोट से तैयारी करनी नहीं है ना, क्लास भी अटेंड करनी है, इसलिए सब चीजें नोट्स में भी नहीं है. क्लास अटेंड करोगे तो भी समझ में आएगा. ठीक है, सिविल लॉ. सेकंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट. आप कुछ भी बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता. ऐसे क्यों बोल दिया? Like a citizen, you have restrictions on your right to freedom of speech and expression, but as a parliamentarian, you do not have. ठीक है, within the premises of parliament. Within the premises. ये assumed है that you will not say anything against the constitution or the state. This is assumption. This is an assumption. ये हम मान के चल रहे हैं. ठीक है, you will be exempted from jury service. ज्यूरी सर्विस भी सिविल ऑफेंसेस के लिए, अब इंडिया में तो होती नहीं है लेकिन सिविल उसके लिए. ठीक है, कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या है? हाउस की जो है रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, हाउस का प्रोसीजर है, हाउस कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन आल्सो पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, एंड दे कैन हैव सीक्रेट सिटिंग. यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड. अब एक अच्छे समझिएगा, एक और चीज हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना 105 में बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, it was mentioned that the parliamentary privileges will be same as that the British House of Commons. Those privileges will be same as the British House of Commons. You must have given so many tests. हर टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन जरूर होता है where the House of Commons word will be replaced by the House of Lords. और वो क्वेश्चन बहुत टफ, उसको क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो इट इज हाउस ऑफ कॉमन्स. The parliamentary privileges will be same as that of House of Commons. That was changed by 44th Constitutional Amendment Act. 44th Constitutional Amendment Act ने क्या बोला? आज से पहले जो थी वही रहेगी. The privileges remain the same. Only the word House of Commons changed. समझ में आ गया? Do we have any doubt in the privileges? बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिया है. Now, who has the power to punish for the contempt or violation of any privilege, parliamentary privilege? Who has the power to punish for any violation? Presiding officer. Presiding officer. Very good. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Next topic. Next topic. चलो क्वेश्चन से शुरू करेंगे, है ना? क्वेश्चन से शुरू करेंगे. Which of the following is a constitutional body? ठीक है, which of the following is a constitutional body? National Commission for Minorities, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes. ये क्वेश्चन बनाई, अच्छा सा क्वेश्चन है, आ सकता है, इसके चांसेस लग से रहे आपको. Which of the following are constitutional bodies? First, National Commission on Minorities. ठीक है. Second, National Commission on Scheduled Caste. Third, National Commission on Scheduled Tribes. Fourth, National Commission on Backward Classes. Option is option A, 1, 2, and 3. Option B, 1, 2, and 4. Option C, 2, 3, and 4. Option D, 1, 2, 3, 4. बताइए. C. Sir, 2, 3, and 4. 2, 3, and 4. Very good.
इजी सा क्वेश्चन था बहुत। SEBC, सोशली एंड ई कब मतलब एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। हाँ बहुत अच्छे समझे, इकोनॉमिक नहीं है, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। पता लगा पेपर में सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस SEBC की फुल फॉर्म ठीक से नहीं पढ़ी थी, क्वेश्चन गलत करके आ गए। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, हु विल डिटरमाइन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लास ऑफ सिटीजन से एक्स, ठीक है, कोई क्लास ऑफ सिटीजन से एक्स, नहीं एक्स नहीं बोलेंगे तुम लोग, फिर खो जाते हो खप ए, ठीक है। दिक्कत ये भी है ना, एक्स सुनते ही ऐसे टुन ऐसा हो जाए तो फिर सर ऊपर करके एकदम भटक जाते हो तुम लोग, ठीक है, कि उनका भी खाने का टाइम हो रहा होगा, है ना। तुम्हारा फोन आ गया, 1 मिनट। हाँ जी, तो there is a class of citizens A. We are not talking about caste because it is socially and educationally backward classes. ठीक है? So there is a class A. Now, in order to consider this as a social and economically backward classes, so that they are eligible for the reservation under OBC, other backward classes. Who will notify that? कौन बताएगा कि आज से ये ओबीसी में कंसिडर होंगी क्लासेस कि नहीं होंगी? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बताओ। ए बी सी डी, वेरी गुड। ऑप्शन आंसर विल बी बताएंगे जब टॉपिक करेंगे, ठीक है, सस्पेंस बना के रखते हैं। अभी इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है। क्वेश्चन 1 वाज हु विल ऐड, है ना। क्वेश्चन 2 वाज हु विल एक्सक्लूड। मान लीजिए ओबीसी तो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, दे आर बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ socially and educationally backward classes. For example, if a class has uplifted itself, then who will remove it from the OBC group so that now they will no longer be eligible for reservation? Who will do that? Option will be A president, B parliament, C state legislative assembly, and D both A and B. एक और बढ़िया बात बताएं, आपका चाहे पहला अटेम्प्ट हो, तीसरा अटेम्प्ट हो, छठा अटेम्प्ट हो, ठीक है, ये क्वेश्चन सबके लिए टफ है, ठीक है। जो बाबा बने बैठे होंगे ना आपके, कुछ ना कुछ कोई ना कोई होंगे जानकारी, बाबा से भी पूछने वाला क्वेश्चन कोई, बाबा बाबी जो भी जेंडर न्यूट्रल है ना, क्योंकि यूपीएससी इतने ज्यादा फेयर अथॉरिटी है कि ऐसे पेपर बनाती है कि आपको पहला अटेम्प्ट हो, लास्ट अटेम्प्ट हो, प्रीलिम्स आपको टफ ही लगेगा, ठीक है। प्रीलिम्स कभी भी हलवा नहीं लगता है। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं अच्छा है? पहला तो चलो ठीक है, दूसरा अच्छा एक्सक्लूड करना है, तो आंसर विल बी बी। पहले का आंसर होगा डी, दूसरे का आंसर होगा बी पार्लियामेंट। कुछ भी चीज आ गई जोड़ सकते हैं प्रेसिडेंट भी, लेकिन एक्सक्लूड सिर्फ पार्लियामेंट, एक्सक्लूड सिर्फ पार्लियामेंट। रीजन है ना, रीजन है दैट president even though
even though the election of the president is considered as independent, but the ruling party always have a certain say in the elections of the president, and it is not necessary that the president who is in power or the president who is holding the office, the same government that elected that president is still in power. Not necessarily. So इसलिए parliament, and also we are a welfare state. We are a welfare state where the people are sovereign. तो ये सब चीजें तो मेंस की काम है. यहाँ तक समझ में आया क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? वेरी गुड. अच्छा, स्टेट के पास क्या पावर होती है? द स्टेट, स्टेटमेंट का आंसर दीजिएगा, ट्रू और फॉल्स. द स्टेट डू नॉट हैव एनी पावर. The state do not have any power to include a group into these socially and educationally backward classes. True or false? The state do not have any power to include any. हाँ जी. अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में सर स्टेट को एम्पावर दी गई है कि वो किसी भी सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे सकती है. तो कितने कितने की शर्त लगाते हैं कि वहां पे स्टेट लिखा हुआ नहीं है? सर वहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है कि स्टेट के पास पावर है कि वो रिजर्वेशन 5000 पेटीएम अभी, 5000 पेटीएम अभी करेंगे, स्क्रीनशॉट भी शेयर करेंगे अगर वहां पे स्टेट लिखा हो तो. तुमसे ये नहीं बोल रहे कि तुमसे भी लेंगे, लेकिन 5000 पेटीएम करेंगे अभी कैश, मतलब केटीएम वही वाला, मतलब पेटीएम करेंगे, स्क्रीनशॉट भी शेयर करेंगे अगर वहां पे स्टेट लिखा हो, पार्लियामेंट ना लिखा हो तो. हाँ, अगर स्टेट जो है रिजर्वेशन अपने रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करने लग जाए ना, कौन सा स्टेट पीछे रहेगा ये बताओ? सर रेसिडेंट को नहीं सर, जो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन है उनको तो स्टेट रिजर्वेशन देती है ना सर. बेटा वो वाला स्टेट नहीं है, वो वाला स्टेट नहीं है, वो वाला स्टेट है. और तू 16 क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है? 16 क्लॉज 3 जो है हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, और कौन सी उसकी बात करता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना? वो तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर. यहां हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं? इन अ क्लास ऑफ सिटीजन. समझे? कंफ्यूज मत होइए. देखिए पॉलिटी इतनी इजी है नहीं जितनी हमको लगती है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? मैं बोला ना, ये 6 अटेम्प्ट वालों को भी, लास्ट अटेम्प्ट वालों को भी ये टफ क्वेश्चन लगेगा, ठीक है? तो स्टेट डिक्लेयर कर सकती कि नहीं कर सकती, इसी पे सारा इशू हुआ था, एंड दैट केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. आप टेंशन मत लो, अगर आपको लग रहा है कर सकती नहीं कर सकते, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यू ऑल आर राइट नाउ फीलिंग लाइक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? बिकॉज दैट केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि दैट इंक्लूड्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर बिगिनिंग नाउ इज रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है? नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? Yes, no. Huh? National Commission on Backward Classes, it is a constitutional body? Yes, no. Very good. It is a constitutional body. Which constitutional amendment? Oh. Which constitutional amendment? नहीं बताएंगे हमें क्या मतलब, हम बदलाव तो लाना ही चाहते, बस जो स्टेटस को चाहिए. चलो याद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिवाइज करते हैं. 99th कौन सा था? 99th नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी 2019 में आया बस, है ना? तो 99 नॉट दैट इंपॉर्टेंट. 2015 में अमेंडमेंट आया था, क्वेश्चन कब आया है? 2019 में, ठीक है? तो अमेंडमेंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. 99 वाज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, याद है? बहुत साल पहले पढ़ा था पॉलिटी में, एज अ 4th जजेस केस हमने पढ़ा था, ठीक है? रिमेंबर? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
So India Bangladesh agreement को वेरी गुड, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट, ठीक है, शेयरिंग ऑफ एनक्लेव्स। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 101 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, GST वेरी गुड, जीएसटी। 102 नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। 103 so EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन। 104 so Anglo Indians का nomination है type वेरी गुड। 105 तो अभी तक आया ही नहीं है ना, 104 तक लेटेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आएगा हम कर लेंगे, हम आइडिया लगा लेंगे। अगर मैच द फॉलोइंग भी आता है 99, 100, 101, 2, 3 सारे हम निकाल लेंगे। वेरी गुड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो थ्रू 300 and through 102nd Constitutional Amendment Act, National Commission on Backward Classes was established, ठीक है, in a constitutional article 338B, okay, it was added in the 338B. According to the article 342A, ठीक है, according to the article 342A, the president may specify a group as a socially and educationally backward classes who are living in a particular state or union territory, ठीक है, who are living in a particular state or union territory. यानी कि if you belong to the state of, let us say, Haryana, because Haryana right now is in news because of good reasons, so many athletes are from Haryana. So Haryana wants to declare a list of socially and educational backward classes for the reservation in the educational institutions and employment in the state of Haryana. So can they declare that list? No, they need to send it to the president and the president can only notify. यानी कि हरियाणा को अपने स्टेट में रिजर्वेशन देने के लिए प्रेसिडेंट से डिमांड करनी पड़ेगी। लेकिन हमने अभी तक क्या पढ़ा था, इज इंडिया फेडरल कंट्री और नॉट? यस। So that is why with respect to the question of constitution and the federalism in the constitution, this question arises that if we have a federal constitution, then why the state need to wait for the notification by the president? Because the same thing, when it is to be done in the central list, the parliament can do it on their own. They do not need the notification by the president. तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए है that whether 342A is taking away the powers of the state. Taking away is the power for the state. And इसीलिए now the center is planning that what they will do, they will make changes in the article 342A itself, where they will give the powers to the state also, or they will say that the recommendation is to be given by the state legislature. यानी कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे बट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, समझ में आ गया? एक्सक्लूड कौन कर सकता है? ओनली पार्लियामेंट। एक्सक्लूजन कैन ओनली बी डन बाय द पार्लियामेंट। आर वी क्लियर विद दिस? यस, नो? इसके साथ साथ आपको रिवीजन में क्या करना है, आज जाके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज पेपर में in a constitutional body this may come. Who are the members, how the appointment of members is done, what is the term of the members, ये सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई मेंशन? चले आगे, चलिए। हाँ, अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेंडेस प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू व्हाट? करंट तो आपने अपनी तरफ से भी तो पढ़ा ही होगा। मेंडेस प्रिंसिपल, लिख रहे हैं, स्पेलिंग लिख रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा तो है करंट अफेयर, तो रिवीजन क्लास है ना, 1.5 साल से 1.5 साल से हम तो कर ही रहे हैं तैयारी। मेंडेस प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू व्हाट? बताइए, ऑप्शन दे, ऑप्शन से बता देंगे।
Option 1. In order to prevent trafficking of human beings, trafficking of women particularly, with respect to the disaster management. Third, with respect to the drug abuse. With respect to the anti-torture by public officials. बताइए A, B, C, D. Sir, D. D. Very good. A, B, ये तुम लोग पढ़ा हुआ है आप लोगों ने या देख लिया था या क्या है, मतलब सब सही बता रहे हैं? क्या रीजन है बताइए? Sir, just had an idea. हाँ जी, Had an idea about it. अच्छा है ना, बस इस टॉपिक से आइडिया रखना, डू नॉट नीड टू गो कि अच्छा अगर टॉर्चर नहीं कर सकते तो नए तरीके क्या है हमारे पास, हमें कोई जरूरत नहीं जानने की, ठीक है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है। व्हेन वी आर रीडिंग दैट न्यूज़ हमें लगेगा अच्छा टॉर्चर मना है। अभी तो हम सोचे सिविल सर्वेंट बनेंगे, हम करेंगे यही, ऐसे टेबल पे हाथ मार के बता कहाँ छुपा रखा है सोना, है ना, ऐसे ये सब तो आपने सोचा होगा कि ये सब करेंगे। अब तो टॉर्चर करने से नए तरीके क्या है, ठीक है, नए तरीके क्या है, तो वो सब नहीं पढ़ना। व्हेन यू विल गेट इनटू सर्विसेज तब आपको नए तरीके नहीं, बिना टॉर्चर के काम करने के ही तरीके पता होने चाहिए, वो नए आपको सब सिखाए जाएंगे। समझ में आया? कुछ टॉपिक को कितना पढ़ना है वो समझ में आया? कितना पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है, बस यू नीड टू हैव एन आइडिया इट इज रिलेटेड टू what are the new ways that is not part of a syllabus, ठीक है, लेकिन फिर भी for the sake of covering that topic हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। Mendes principles, these are the principles regarding the anti-torture to reduce the torture in obtaining evidences, ठीक है, obtaining evidence। आपने मूवीज में देखा होगा ना कि एविडेंस लेने के लिए पता नहीं कैसे कैसे टॉर्चर करते हैं एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट वाले, देखा होगा आपने, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उसमें क्या है, दैट इट शुड बी इन सच अ मैनर दैट द पर्सन हु इज अक्यूज्ड, दैट पर्सन इज स्टिल कंसिडर्ड इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, that person is innocent till proven guilty, that person should not feel that their human rights are violated. Mendes principle is chief. For example, there is an accused X, फिर हो जाओगे accused A, ठीक है, there is an accused A. अब A is an accused, let us say A is an accused, let us say of A is an accused of rape and murder, okay, A is an accused of rape and murder. Now you want to evidence, or you want from that person to know where that this accused has buried the body of the victim, okay? अब ये पता लगाने के लिए आप क्या क्या तरीके यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन ये क्यों भूल जाए कि अभी accused है, this person is not guilty. What if this accused loses his life or commits suicide or goes into mental illness and later on it is identified that this person was not the accused, फिर क्या होगा? That person might be scarred for life, है ना? तो इसीलिए मेंडेस प्रिंसिपल है। और ये क्यों आया प्रिंसिपल? बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। इनका असली नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑन इफेक्टिव इंटरव्यूइंग फॉर इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, प्रिंसिपल्स ऑन इफेक्टिव इंटरव्यूइंग एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो मेंडेस प्रिंसिपल रिलेटेड टू, तो ये भी आ सकता है, दैट इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स ऑन इफेक्टिव इंटरव्यूइंग फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ओके। क्या है? रिप्लेस करना है कोर्सिव इंटेरोगेशन एंड रिप्लेस टॉर्चर। ये भी कोर्सिव, अगर मान लीजिए किसी को आप टेबल पे हाथ मार के बोल रहे बता कहाँ है सोना, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कोर्सिव, आप उसे डरा रहे हैं, ठीक है, आप उसको डरा रहे हैं, तो ये भी नहीं करना। क्या करना है वो बाद में जानना, ठीक है, क्या करना है बाद में जानना, ठीक है। वो तो बहुत सारी चीजें कि तुम्हारे जो है स्नैपचैट पे तुम्हारा फिल्टर लगा के फोटो डीपी लगा देंगे, तो बहुत सारे घबराने के लिए, तो टॉर्चर के लिए बहुत सारी चीजें है ना। तो ये चीज,
और मेंडेस कौन थे? नेटिव अर्जेंटीना एंड फॉर्मर स्पेशल रेपोर्टियर ऑन टॉर्चर। ये सब जानने की जरूरत है। समझ गए? मेंडेस प्रिंसिपल कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। द मोटो सहकार से समृद्धि इज ऑफ विच मिनिस्ट्री? सहकार से समृद्धि मोटो इज ऑफ विच मिनिस्ट्री? फर्स्ट, जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। A, B, C, D. C, वेरी गुड। तो एक नई मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, वेरी गुड। इट इज द मोटो और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिनिस्ट्री फॉर कोऑपरेशन से प्रोस्पेरिटी, सहकार से समृद्धि, कोऑपरेशन टू प्रोस्पेरिटी, वेरी गुड। द कोऑपरेशन मीन्स इट इंक्लूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, वेरी गुड। यहां तक समझ में आया है? हाँ ना? बोलो सब इतने खोए खोए से क्यों? छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे, पहले भी बताओ सब खोए खोए क्यों? आज तो पहली क्लास है, एक्साइटेड सा होना चाहिए थोड़ा सा हम लोगों को। सब लोग ऐसे खोए खोए उदास उदास से क्यों है? मंडे का फास्ट रखा हुआ कुछ लोगों ने, इसलिए हम थके थके थे। हाँ बताओ, डर लग रहा है? किस चीज से डर लग रहा है? नहीं बेटा, हम ही है, घबराओ मत। लॉकडाउन बदल गए थोड़े से, लेकिन हम ही है, डरो डरो मत। अरे हमसे डरने लग गए हो? अच्छा, प्रीलिम से डर रहे हैं, फिर डर लो। और क्या रीजन है? क्यों इतने एनर्जी लो क्यों है? बताओ। बाकी सब पढ़ते रहेंगे। अब तो हम, आपके पास भी करंट अफेयर्स के अलावा कोई और काम नहीं है, हमारे पास भी करंट अफेयर वाला कोई और काम नहीं है। आफ्टरनून में तो हमें यही करना है, ठीक है? हमारी आफ्टरनून सब करंट के नाम है, लेकिन विद मोटिवेशन, विद डेडिकेशन। बताओ क्या रीजन है? डर लग रहा है? किस किस को डर लग रहा है? सबको लग रहा है। अब डर लगाओगे तो फिर 9 अक्टूबर को क्या करोगे? ये बताओ। अपने बर्थडे के लिए 2 महीने पहले से एक्साइटेड होते हो क्या? इतना जितना भी डर रहे हो प्रीलिम से एक दिन पहले, एक दिन पहले सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, है ना? तो फिर पेपर से 2 महीने पहले क्यों डर रहे हो? अभी तो आपके पास कितना टाइम है? हाउ मेनी वीक्स यू हैव? 8 वीक्स। यू हैव 7 टॉपिक्स। यू हैव 8 वीक्स, यू हैव 7 टॉपिक्स। फिर भी पर वीक के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से आपके पास ज्यादा टाइम है। डर की क्या बात है ना? तो डरो मत, अभी तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अभी तो बहुत सारे लोग जो इंटरव्यू देके आए हैं वो अभी एंजॉय करके पढ़ना शुरू करेंगे प्री के लिए, ठीक है? तो अभी तो आपके पास ऑप्टिमम टाइम है। आंसर आते पर लग रहा है आंसर गलत है, वो तो लगेगा, वो तो देखो, आप कितने भी अच्छे से तैयारी करके जाएं,
आपको क्या लगता है आप कितनी बेस्ट प्रिपरेशन, मान ली हाउ मेनी इयर्स यू वांट फॉर अ बेस्ट प्रिपरेशन, पहले बताओ हाउ मेनी इयर्स? Max 1.5 years. हाँ जी, Max to max 1.5 years. 1.5, आई गिव यू 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल आपने प्रिपरेशन करी विद ऑल योर डेडिकेशन। आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चन आप शॉर्ट सही कर पाएंगे पेपर में? हाउ मेनी क्वेश्चन यू विल डू शॉर्ट करेक्ट आउट ऑफ 100 कि ये तो सही है ही है? कितना लगता है हम लोगों को? 10? अरे नहीं नहीं, इतना इतना भी नहीं इतना भी नहीं, 10 नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप 40 कर ले रहे हैं तो ये बात मान के चलना आपका 100% सिलेक्शन हो रहा है, अगर आप सही कर रहे हैं। क्योंकि इन जनरल 25 to 30 क्वेश्चन ही होंगे जिसमें आप कॉन्फिडेंट रहेगा ये तो सही है, इवन इफ यू प्रिपेयर फॉर 3 years, ठीक है। वो डर के साथ ही रिस्क लेना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में आफ्टर दोस शॉर्ट, लेकिन उसमें एटलीस्ट ये हो कि यू आर ओनली कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस, यानी कि चारों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन नहीं, वाले क्वेश्चन तो छोड़ देने हैं, जहां पे लगे ना इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है तो वो छोड़ देने, ठीक है। यू नीड टू लीव दोस क्वेश्चन, वहां पे हमें गैस वर्क नहीं करना है ना, वहां पे हमें गैस वर्क नहीं करना। आंख बंद करके तो फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते ना किसी को, क्योंकि गलती से किसी जिसे नहीं भेजनी उसको चलेगी, फिर कैन वी टेक दैट रिस्क? नहीं। तो ये तो हमारा करियर है, वो तो सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट की बात है, वहां तो ऑप्शन भी होता है रिमूव करने का, है ना। गैस नहीं करना है एंड वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ज्यादा से क्या होगा क्लास में, ज्यादा से ज्यादा क्लास में क्या होगा, अभी तो जो है प्रिपरेशन ही तो है, ज्यादा से ज्यादा आंसर गलत दे दोगे, लेकिन ये तो पता लग गया ना कि आप इसके अलावा आंसर गलत नहीं दोगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लाइफ में जब पहली बार चाय बना, ठीक है, यू आर मेकिंग टी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ठीक है, यू हैव सॉल्ट एंड यू हैव शुगर पाउडर, यू हैव शुगर पाउडर। एक बार गलती से अगर सॉल्ट डाल दिया तो जब वो चाय पियोगे, जीवन में हमेशा है कि अगर 2 चीजें कंफ्यूज है, टेस्ट करके डालोगे, कभी नहीं भूलोगे ना कि टेस्ट करे बिना नहीं डालना है, एक ही बार तो गलती करोगे, तो यहां कर लो आराम से बिना डर के, बिंदास। और जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी। द मोर वी पार्टिसिपेट द मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी वी विल गेट, the more we'll participate the more conceptual clarity we'll get, okay? इसीलिए पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। आज हमें जैसे फॉर एग्जांपल वही ले लेते हैं कि हमें आज पार्टिसिपेशन करा तभी तो पता लगा कि मेडल जो है 3 टाइप के होते हैं, जेवलिन मेडल नहीं होता है, until we did not participate हमें कंफ्यूजन है। क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। हाँ, तो वही मैं बोल रहे हैं ना, पार्टिसिपेट करता एक चीज तो सीखी, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना है, और ऐसे ही तो सीखते हैं, अरे ऐसे ही तो में नमक डाल के आए सर, हम कल चाय में नमक डाल के आए पेपर में। अच्छा, कोई बात नहीं, अगली बार जो है टेस्ट कर करके डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पेपर सबके लिए टफ होता है, जब आपको लगता है ना कि ये पेपर हमारा के लिए टफ है, सबके लिए टफ है। यूपीएससी या कोई भी एग्जाम में अगर पेपर टफ लग रहा है तो ठीक है, पेपर इजी लगना डर लगता है, ठीक है। जब किसी भी कैंडिडेट को ये लगे ना अरे पेपर बहुत इजी था, तो फिर तो बहुत गड़बड़ है। क्योंकि हमारी जानकारी में जितने लोगों के सिलेक्शन हुए हैं या जो सिलेक्शन के डिजर्विंग थे, हम कभी उन्होंने ये नहीं बोला पेपर इजी था, और अगर वो कह रहे हैं पेपर इजी तो इसका मतलब यूपीएससी का पेपर नहीं था, कोई और पेपर दे के आए। यूपीएससी के पेपर में 25-30 से ज्यादा क्वेश्चन इजी हो ही नहीं सकते, बनाते ही नहीं है ऐसा, ठीक है। एक बार बना दिया था 2016 में, बहुत इजी पेपर, बहुत इजी पेपर की कट ऑफ कितनी हाई सोच रहे हो आप, चली गई होगी 116 गई थी, बहुत इजी पेपर की। सोचो 116 वाज मतलब वेरी इजी पेपर, तो भी 60% नहीं पहुंच पाया उसमें कट ऑफ,
दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ यूपीएससी। ओके, डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी? डरना नहीं है, देखो डर के कोई फायदा नहीं है। आप और जो है नॉलेज अपनी रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस में रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत आंसर दे देंगे बस, है ना। 10 के आंसर दिए, डर में कोई बात नहीं। 10 के 10 करके आए, उसमें से 7 के सही होने के चांसेस भी तो हो सकते हैं, लेकिन ये 10 छोड़ा है तो ऑलरेडी आप 0 पे हो। ये 10 छोड़ दे तो ऑलरेडी 0 पे हो आप। ट्राई करो, देखी जाएगी, है ना। वेरी गुड। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, दैट विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। द वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेंशन्ड इन विच पार्ट और इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द cooperative societies are mentioned in which of the following parts of the constitution? One, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जल्दबाजी का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। डीपीएससी हमने बोला था, ध्यान से सुनिएगा। अभी क्वेश्चन नहीं, शुरू भी नहीं हुआ है, आंसर मत दीजिए, बताएंगे जब। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 9B, ठीक है। 5 पार्ट पूछा, तो चलो फिर क्या क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, यहीं पे रोक देते हैं इसको। अब ऑप्शन है A 1, 2 and 3, B 2, 3 and 4, C 1, 3 and 4, D 1, 2 and 4। अब बताइए। So 1, 2 and 4. Sir, 1, 2 and 4. Option D. ऑप्शन D। D. वेरी गुड। पार्ट 3 that is fundamental right, पार्ट 4 that is DPSP, पार्ट 4 is fundamental duties, fundamental duties में नहीं मेंशन है। पार्ट 9B is cooperative society, and all these were added through which constitutional amendment act? The 97th. Very good, 97 constitutional amendment act 2011। Very good। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कोई अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू होते हैं? 368. 368। You all remember amendment can be done through 3 ways. Amendment can be done through 3 ways. First is simple majority. You all remember that? Yes, sir. Second is Special special majority. Third is special majority with half plus ratification of all the states. And fourth is special plus, ये ऑप्शन बना रहे हैं ना, ये मत बोलो क्या लिखा है ये नहीं बता रहे। 368 में तो सिंपल भी नहीं है, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बना रहे हैं। 97 अमेंडमेंट एक्ट इन चारों में से कौन से तरीके से हुआ था? अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसी दिन क्वेश्चन पेपर के बाद हम रेट बता देंगे, उतना पेटीएम कर दीजिएगा, ठीक है। इतने ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन के आने के। 97th Amendment Act was done through which way of amending the Constitution? Simple majority, special majority, special plus all states ratification, special plus half of the state ratification. C. Very good. D. Very good. A, B ने कुछ मतलब आपके साथ गलत किया है, A, B क्वेश्चन कुछ नहीं, क्यों नहीं? C and D नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब न्यूज पढ़ा है, किस लिए पढ़े हम? तो रिसेंटली, चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बी,
अच्छा बी, एक ए तो कोई नहीं लग रहा, एक कोई नहीं है, एक वाला तो कोई नहीं है। अच्छा ए क्यों नहीं है ये भी बता दो, रिवीजन तो रिवीजन है। व्हाई ए इज नॉट द आंसर? कॉन्फिडेंस में सबने बोला ना ए नहीं है आंसर, लेकिन क्यों नहीं है ये तो बताइए। एसिड, ये तो हाँ, वो तो आप सही बोल रहे हैं, न्यूज आपने सही पकड़ ली राजेश। अब ये पूछ रहे हैं ए क्यों नहीं आंसर। देखो अगर ए होता तो 97 नहीं होता, 97 होता तो ए नहीं होता, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी इज नॉट काउंटेड एज एन अमेंडमेंट। तो ए तो है ही नहीं, है ना। स्पेशल प्लस ऑल द स्टेट्स वाला कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, तो ना ही ए है ना ही सी है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रिस्क ले लेना है, ठीक है। या तो स्पेशल होगा, स्पेशल में हाफ ऑफ द स्टेट, ये है आंसर। अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इन विच लिस्ट? ऑप्शन दे देते हैं। ये तो न्यूज सबने पढ़ी हुई है ना, ये तो सबने न्यूज पढ़ी होगी, वीडियोस भी देखी होंगी। क्या हो दोस्तों, ये सारा चेंजेस हैं, ये वाली चीजें बताते हैं, है ना, नमस्कार दोस्तों, ये सब जो है देखा होगा हमने। लेकिन यूपीएससी हम लोगों से एक कदम आगे रहती है हमेशा। हाँ जी, स्टेट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन 3 कंकरेंट लिस्ट, या ऑप्शन 4 रेजिडुअल आइटम, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में, वेरी गुड, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। तो फिर अमेंडमेंट कैसे होना चाहिए इसका? बी की डी, स्पेशल की स्पेशल या रेटिफिकेशन विद हाफ ऑफ द स्टेट्स? सर हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहां तक आप समझ पा रहे हैं क्या हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, कि हाउ क्वेश्चन कैन बी मेड। अब इसका आंसर हम बताएंगे पहले न्यूज पढ़ने के बाद, ठीक है, न्यूज पढ़ने के बाद। तो देयर आर टू न्यूज दैट आर इंटरलिंक्ड। फर्स्ट देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन दैट इज क्रिएटेड। फर्स्ट देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन दैट इज क्रिएटेड। वेरी गुड, एक क्वेश्चन ये बन सकता है दैट हु हैज द पावर टू क्रिएट मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री can only be created through an act of the parliament, true or false? Ministry can be created only through an act of the parliament, true or false? True or false? False, very good, क्योंकि कभी अभी कोई एक्ट आया ही नहीं है। तो मिनिस्ट्री आर क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री कैन बी क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द prime minister, headed, who is heading the council of ministers. A new ministry is created, it is called as Ministry of Cooperation, ठीक है। This ministry is under central government, it is not a state ministry, it is a union ministry. The motto of this ministry is to realize the prosperity through cooperation, that is सहकार से समृद्धि, ठीक है। It is to complete the commitment made under the financial budget. Now what is the significance of this ministry? First, to provide a separate administrative and legal policy framework for strengthening the cooperative movement in the country. It will deepen the cooperatives as a true people-based movement reaching the grassroots. It will work to streamline the process of ease of doing business. बाकी दो तो आप कर देंगे. Third option you need to remember that this ministry is also created for the purpose of strengthening the ease of doing business. Okay, for strengthening the ease of doing business. यहाँ तक समझ में आया? This is the purpose. Now the Ministry of Cooperation is to fulfill the goal of cooperative societies, which were added through 97th Constitutional Amendment Act 2011 in Part 3 of the Constitution in the Article 19, Clause 1, Subclause C, where the people, they have the right to be a part of union, associations and cooperatives. DPSP में 43B was added, where the cooperation of societies shall be done by the state. In Part 9B, a complete part is added after the municipalities as the cooperative society.
ठीक है. This article will provide the details with respect to the election of the cooperatives, constitution of cooperatives, the powers of the cooperatives, and the functions of the cooperatives. ठीक है. These are provided in these various parts. ठीक है. These are provided in these various parts. Now, part 9b is from which article to which article? You must remember that. Okay. It is from ZH 243 ZH 243. इसलिए आ सकता है क्योंकि ये बहुत न्यूज में है. 243 ZH ये तो याद रहेगा क्योंकि म्युनिसिपैलिटी आर फ्रॉम ZG. ZG याद है, याद करा था ZG. तो G के बाद H ही आता है. इतना तो आप याद कर ही लोगे सी सेट की तैयारी में. वैसे ना हो पाए लेकिन सी सेट में तो ABCD तो याद हो ही जाएगी. ठीक है. ZH से ZT 243 ZT. ओके. 243 ZH से 243 ZT. ये सब ऐड किया गया. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. बना लेंगे कोऑपरेटिव, है ना. लेकिन अभी वेरी रिसेंटली Supreme Court has upheld the validity of the 97th Constitutional Amendment Act, but brought certain provisions which will be considered as unconstitutional, or highlighted certain provisions that will be considered as unconstitutional. तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया, where the Gujarat High Court has declared 97th Amendment as unconstitutional for one reason, that the amendment should have been done by the special majority with ratification of half of the states, but it was not done by the special majority with the ratification of half of the state. It was done only by the special majority. पहला reason. दूसरा, the cooperative is mentioned in the state list. When the cooperative is mentioned in the state list, then how the parliament without the special provisions? The special provisions are mentioned under the articles 249, 250, 252, 253 and 356. याद है? 249 the powers to Rajya Sabha, 250 under national emergency, 252 with consent of 2 or more states, with 253 under the international agreement, and 356 under the president's will. In these conditions, parliament can legislate on the state list. इनके अलावा आपने कैसे legislate कर लिया? तो because of these reasons, the amendment was declared as unconstitutional. Only the provisions. और चीजें क्यों नहीं हटाई हैं? क्यों नहीं हटाई हैं? Because आर्टिकल 19 में ऐड हुआ है, वो हट गया था, वो नहीं हटाया. ठीक है. तो पार्ट 9b will not be considered, but आर्टिकल 19 1c will be considered, 43b will be considered. समझ में आया था? जो 9b में चीजें थी वो कंसिडर नहीं हुई. Why? Because that has to be done by the state. That has to be done by the state, and the state will provide all the provisions for cooperatives, but the center did not follow the constitutional guidelines. The case is still under adjudication because the Supreme Court is, or the central government is saying that they use the power under Article 252, where 2 or more states, they gave the consent to the parliament to legislate on their behalf. Second, they are saying that they want to streamline the process of cooperation. Okay, that is why they have created the ministry, and they have also created the system of the ministry and the system of having the legislation through the amendment, or that is why they added it into the constitution. यहाँ तक समझ में आया? ठीक है. अब एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, that multi-state cooperatives are still under the ambit of this constitutional act, because multi-state cooperatives, they are in more than one state, or wherever there is something to be done in more than one state, the parliament will have the power to do that. So multi-state cooperatives will function as per the part 9b of the constitution. Otherwise, all these things will be considered as null and void. समझ में आया? समझ में आया cooperation से?
कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? बताइए। यस, नो? कुछ बोल ही नहीं रहा है कोई। क्वेश्चन थे ना कुछ, क्वेश्चन सारे आंसर हमने सब आंसर कर लिए ना जो बनाए थे अभी। तो हाँ जी, हुआ है स्पेशल से, होना चाहिए था स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट लिस्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट लिस्ट, these all are the questions that can come from cooperative society। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द इलेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर कंडक्टेड बाय ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बी स्टेट इलेक्शन कमीशन, सी nominated members only, D no election। बताओ, who will conduct the election in cooperative society? बताइए। राहुल, डाउट है? नो इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट, नहीं, नॉमिनेटेड होते हैं या तो अपॉइंटेड होते हैं, लेकिन इलेक्शन जब होंगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएंगे। इलेक्शन होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सर अगर वो आर्टिकल 19 में आ रहा है कि राइट टू असेंबल है, तो उसमें फिर अपॉइंटमेंट या नॉमिनेशन का क्या पॉइंट है? आप कोऑपरेटिव का मेंबर बन सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव का एक बोर्ड भी तो होगा ना। मान लीजिए हमने एक मिलके कोऑपरेटिव बनाई, उसका नाम रख दिया अमूल, लेकिन अमूल के पोस्टर में कौन से फोटो आएगी वो तो एक बोर्ड डिसाइड करेगा। सब लोग कहेंगे, वरना कहेंगे मेरे बच्चे की लगा दो, मेरे बच्चे की लगा दो। अगर कोऑपरेटिव सब मेंबर है तो बोलेंगे हर कोई अपने बच्चे, क्योंकि सबके लिए सबसे क्यूट अपना बच्चा ही होता है ना, तो कहेंगे हमारे बच्चे लोग। फिर ऐसे अमूल में तो हर रोज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अमूल कौन सा वाला अमूल है, हर रोज बच्चा चेंज हो रहा है उसमें, है ना। तो उसके लिए एक बोर्ड बनता है, उसको कोऑपरेटिव बोर्ड बोलते हैं। और वो बोर्ड के मेंबर कैसे चूज होंगे, ठीक है, वो बोर्ड के मेंबर कैसे चूज होंगे, इसके लिए एक वीडियो भी है, डुब्रिज पे ही एक वीडियो है, नहीं बनाया है, उसको देखिएगा आप लोग और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आना है इससे, प्री में तो नहीं, मेंस में आएगा, प्री मेंस में भी आएगा। ओके, वेरी गुड। चले आगे। सेक्शन 66A was recently in news, is the section of which act? IPC 1860, ठीक है, टेलीग्राफ एक्ट 1888, IT एक्ट 2000, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। Section 66A recently was seen in news, is this section of which? सोचिए 66A पढ़ लिया, किसका है ये तो पढ़ा ही नहीं, और क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करेंगे? सर आईटी एक्ट IT का है। Act 2000। हाँ, IT एक्ट 2000, ठीक है। नाउ this was declared as unconstitutional, this is not functional। आपको 66A के अंडर अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में केस है कि जब ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं है वैलिड तो आपने अरेस्ट कैसे किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई अरेस्ट कर ले टू बी, मान लो कोई आपको बहुत हैंडसम होने के लिए अरेस्ट कर ले, मान लो कर लिया कि नहीं तुम बहुत गुड लुकिंग हो इसलिए तुम्हें अरेस्ट कर लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं है, हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हो, है ना।
है ना। तो ऐसे ही सेक्शन 66A के साथ हुआ, जब समथिंग दैट इज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हाउ कैन यू मेक अरेस्ट अंडर सच एन एक्ट। समझ में आ रहा है। तो ये न्यूज में था। कौन से केस के थ्रू इट वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, विच केस, बताइए। श्रेया सिंघल केस। अब दिस केस वाज इन 2015, लेकिन क्या क्वेश्चन आ सकता है 2021 में? बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज सेक्शन 66A इज इन यूज। तो इसको पढ़ते हैं, क्या है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है कि भाई इतने साल हो गए हैं इसको हटे हुए, फिर भी अरेस्ट क्यों हो रहे हैं। इट वाज स्ट्रक डाउन इन द श्रेया सिंघल केस इन 2015। इसमें क्या होता है, आईटी एक्ट के अंदर जो भी आपके कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर, जो भी आपके कंप्यूटराइज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइबर स्पेस के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, दैट विल बी गवर्न्ड बाय द रूल्स दैट आर गिवन अंडर द एक्ट, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, इसको ई कॉमर्स के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड अंडर ई कॉमर्स ऑल्सो। अब सेक्शन 66A किस चीज के लिए पनिश करता था? फॉर डूइंग एनीथिंग ऑफेंसिव, मेनेसिंग और कॉजिंग annoyance and inconvenience. Any person who is doing anything offensive, menacing, causing annoyance and inconvenience, people are arrested. इसके लिए मैक्सिमम 3 साल की जेल मिल सकती थी। If you are doing something using a mobile phone or tablet, ठीक है, if you are doing it using a communication device, ठीक है, आपने किसी को कुछ भी बोला लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आईटी एक्ट आप पे नहीं लग सकता। ठीक है, उसके लिए अलग एक्ट है, टेंशन मतलब बचोगे नहीं, अलग एक्ट है उसके लिए। इसके लिए कुछ भी बोलोगे तो बच जाओगे। ठीक है, बोलना बहुत सोच समझ के है हम लोगों को, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज अ क्वालिफाइड राइट, है ना। तो ऐसा नहीं कंप्यूटर पे नहीं बोले तो बच गए, बोलोगे और कुछ ऐसा बोलोगे तो फंसोगे तो जरूर, है ना। आजकल तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और कुछ नहीं होता, आजकल कोई ना कोई कहीं ना कहीं मोबाइल ऑन करके रिकॉर्ड करता ही रहता है, तो आईटी एक्ट से तो बचना मुश्किल ही नामुमकिन ही था, है ना। यस नो कोई दिक्कत। ठीक है, 3 साल की जेल थी। अब कोर्ट ने क्या बोला, स्टेट से जवाब मांगा है कि ऐसा क्यों हुआ है, दिस इज इन। तो क्वेश्चन इससे ये बन सकता है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता, और जो आगे बनेगा वो बताते हैं। कोई दिक्कत, कोई टेंशन। रिसेंटली ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स रिलीज हुए हैं। ड्राफ्ट ड्रोन, ड्रोन पता है क्या होता है? ड्रोन पता है क्या होता है? क्या होता है ड्रोन? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रोन? अगर क्वेश्चन में आ गया डेफिनेशन ऑफ ड्रोन स्टेटमेंट और करेक्ट है कि नहीं है, तो बताओ ड्रोन होता क्या है। यूपीएससी है, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। व्हाट इज अ ड्रोन? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे यूज रिकॉर्डिंग करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, अगर उसमें कैमरा नहीं है तो ड्रोन नहीं है ना। अगर उसमें कैमरा नहीं है तो ड्रोन नहीं है। बताओ बताओ बताओ। If it does not have a camera, that means it won't be considered as a drone. Unmanned air vehicle. ड्रोन तो नाम रखा हुआ है, अनमैन्ड एयर व्हीकल, कोई भी एयर व्हीकल which is driven without any human being, that is remote controlled air vehicle, that will be considered as a drone. ठीक है, तो उसके लिए there was a guideline. ठीक है, they are flying electronic device for convenience. नहीं, इनकन्वीनियंस के लिए भी हो सकता है। अब किसी के ऊपर जो उसके थ्रू लोग तो बम भी फेंकने के लिए यूज करते हैं ना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, तो इनकन्वीनियंस के लिए भी है। तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए कंसिडर करें। ठीक है, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स रूल्स आए थे मार्च 2021 में, लेकिन गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि न्यू मिनिस्ट्री हैज कम, वो मतलब न्यू मिनिस्टर हैज कम ऑफ द सिविल एविएशन। न्यू मिनिस्टर, यू नो हु इज द न्यू मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन?
नहीं पता? ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द न्यू मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, है ना? ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो नए रूल्स आए ट्रस्ट सर्टिफिकेशन एंड नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग के, ठीक है, नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग के। ये क्या है कि दे वांट टू क्रिएट अ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। देखिए बेसिक पर्पस क्या है कि ड्रोन का यूज, जैसे वर्ल्ड में बहुत जगह ड्रोन इज यूज फॉर डिलीवरी, ठीक है, ड्रोन इज यूज फॉर डिलीवरी। जैसे आप दिल्ली एनसीआर में स्विगी जो ऐप है फूड डिलीवरी, उन्होंने बोला है वो ड्रोन यूज करेंगे खाना डिलीवर करने के लिए, कर रहे हैं, उन्हें परमिशन मिल गई है, पता आपको? नहीं पता? परमिशन मिल गई है, यू नो दैट और नॉट? नहीं पता आप लोगों को? तो इन सब कामों के लिए अब ये सब जब काम होंगे, ठीक है, जब ये सब काम होंगे तो उसके लिए रूल्स जरूरी है। नाउ इंडिया वांट्स टू इंप्रूव इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इट्स रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कौन सी इंस्टीट्यूशन निकालता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स? विच इंस्टीट्यूशन? विच इंस्टीट्यूशन? बताओ, जल्दी से जवाब दो, जनता जवाब चाहती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो कर लेंगे, लेकिन रिपोर्ट कहाँ कौन निकालता है वही तो बताओ। नहीं बताओ, बिल्कुल नहीं बताओगे। यूपीएससी क्वेश्चन है, 2 बार है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज रिलीज्ड बाय, कोई नहीं बता रहा है, मतलब कोई तो बता देगा। लिख लो आंसर, वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है, आंसर लिख लीजिए आप, वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो हमें अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करनी है, उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास सिंगल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास ड्रोन है, हमें ड्रोन से डिलीवरी करनी है। ड्रोन से हम डिलीवरी क्यों करना चाहते हैं? जिससे हमारी एनर्जी का यूज हो, हमारी डिलीवरी फास्ट हो। लेकिन अगर आपका ड्रोन ही आधे टाइम परमिशंस में अटका रहे तो आपकी डिलीवरी फास्ट कहाँ हो रही है? मान लीजिए ड्रोन यहाँ से निकला, वहां वाली जो रास्ते में थाने की चौकी वाले ड्रोन ने हमारे ड्रोन को अरेस्ट करके अपनी चौकी में रख लिया, हमारा ड्रोन बेचारा वहां बैठा हुआ है, तो उसका पर्पस नहीं सॉल्व होगा। इसीलिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वेयर देयर विल बी मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस एंड देयर विल बी अ सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम। ड्रोन लिया, काम क्या क्या काम है करके हमारा काम हो गया, ड्रोन विल बी पर्पसफुल। क्यों? क्योंकि मल्टीपल अप्रूवल्स अगर आप लेंगे तो इट विल लूज द एसेंस, इट विल लूज द एसेंस। अब इस पहले क्या होता था, बहुत सारे सर्टिफिकेट चाहिए थे। सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मेंस कि आप जो है सिर्फ फूड डिलीवरी के लिए यूज कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं इसको। दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस कि आपका ड्रोन मेंटेन्ड है, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से कुछ मिसहैपनिंग हो जाए। इंपोर्ट क्लियरेंस है, एक्सेप्टेंस है, परमिट है, R&D है, पायलट का लाइसेंस चाहिए होता। अगर आप ड्रोन, अभी तो आप तो मजाक मजाक में ड्रोन चला लेते हैं, बट नए लाइसेंस के थ्रू यू नीड, नए रूल्स के थ्रू यू नीडेड अ लाइसेंस टू फ्लाई अ ड्रोन। तो अब जो लाइसेंस आया उसमें क्या है कि अगर आप छोटे ड्रोन नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए चला रहे हैं तो नो, यू डू नॉट नीड अ लाइसेंस, ठीक है। फीस नॉमिनल कर दी है, साइज ऑफ ड्रोन से कोई मतलब नहीं, आपका ड्रोन बड़ा है तो ज्यादा फीस, ड्रोन छोटा है तो कम फीस, ऐसा कुछ नहीं है। फीस नॉमिनल विदाउट द साइज ऑफ द ड्रोन। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म 3 चीजों में डिवाइड किया गया, ग्रीन, येलो एंड रेड। रेड मतलब वहां तो जाना अलाउड ही नहीं है, येलो मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया, ग्रीन मतलब विदाउट परमिशन भी जा सकते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट पैरामीटर के पहले 45 किलोमीटर तक आप ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकते थे विदाउट परमिशन, अब दैट इज रिड्यूस टू 12 किलोमीटर, ठीक है, दैट इज रिड्यूस टू 12 किलोमीटर। अब आप विदाउट परमिशन 400 फीट तक ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ा सकते हैं, 400 फीट हाइट तक। एयरपोर्ट एरिया में फ्रॉम 8 टू 12 किलोमीटर 200 फीट तक उड़ा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्राफ्ट रूल्स है, हम बस फेल सेफ होके कर रहे हैं कि एटलीस्ट आपको नए पता रहे तो पुराने कुछ याद रहे कि हाँ लाइसेंस चाहिए था पायलट के लिए, मल्टीपल क्लियरेंसेस चाहिए थी, ड्रोन वाज रिलेटेड टू द साइज, द फीस वाज रिलेटेड टू द साइज, इससे आप लोगों को सभी याद रहे।
फॉरेन ओन कंपनी को भी ड्रोन में कोई दिक्कत नहीं है. नो पायलट लाइसेंस फॉर नॉन कमर्शियल यूज, नैनो ड्रोन्स एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन. कार्गो डिलीवरीज भी कर सकते हैं आप ड्रोन के थ्रू. एंड ड्रोन प्रमोशन काउंसिल विल बी क्रिएटेड. सेफ्टी फीचर होंगे, यानी कि रियल टाइम ट्रैकिंग होगा, जियो फेंसिंग होगी, एंड जो कंप्लायंस है विल बी प्रोवाइडेड इन अ 6 month लीड टाइम. कवरेज जो है, पहले ड्रोन could only cover 300 kgs, अब it is increased to 500 kgs. ड्रोन टैक्सीज भी इंक्लूड करी हैं. टैक्सीज मतलब वही डिलीवरी सिस्टम है. एंड द सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस विल बी प्रोवाइडेड बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. द सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस विल बी प्रोवाइडेड बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. ये सब इतना जाना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज इट इज ड्राफ्ट. ड्राफ्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं. आर वी क्लियर विद दिस? यस, नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? वेरी गुड. समझ में आ रहा है इतना? कोई डाउट है तो बताइए. अभी तक आज इतना ही पड़ेगा. आज आपके लिए, पहली क्लास के लिए आपके लिए हैवी हो चुका है, आपकी शक्ल से पता लग रहा है सबकी, है ना. और लोकपाल इंपॉर्टेंट है तो उसका कल ही करेंगे. अभी तक कोई डाउट है तो बताइए. यस, नो, नहीं है तो विल कंटिन्यू टुमारो 1 PM. ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो 1 PM. आपका क्या टारगेट है? जो भी करंट अफेयर्स है वो मैं रिवाइज करने हैं. ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स रिवाइज करना. आई विल शेयर द होल PDF विद यू, जिससे आप आगे का भी पढ़ना चाहें तो आगे का भी पढ़ लें. ठीक है, आगे का भी पढ़ लें. आई शेयर द होल PDF. क्लास में नहीं डिवाइड करके इसको कंप्लीट उसमें यूज करेंगे. दूसरा, वट एवर टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन द करंट, उसके बेसिक्स आपको रिवाइज करने हैं. क्या क्या हमने कवर किया है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, है ना. उसके बाद हमने कवर किया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, आपको तीनों कमीशन देखने हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस. कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज स्टैट्यूटरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये जब आप रिवाइज करें कल आंसर देंगे इस चीज का. ठीक है, फिर हमने कोऑपरेटिव्स पढ़ा, फिर हमने मेंडेस प्रिंसिपल्स पढ़ा. कोऑपरेटिव्स भी रिवाइज करना है हम लोगों को. फिर सेक्शन 66A पढ़ा, वो भी रिवाइज करना है. इतना अभी हमें पढ़ा, इतना ही आप रिवाइज करिएगा. फर्स्ट क्लास के लिए ही बहुत ज्यादा है. ओके, विल कंटिन्यू टुमारो. कोई और डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क. ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट व्हेन एवर यू कैन. ओके, कोई लिमिट नहीं है. 24/7 आप डाउट पूछ सकते हैं. जैसे ही हमारे पास टाइम होगा आपका रिप्लाई कर देंगे. टेक्स्ट आप कभी भी डाल सकते हैं. ठीक है, टेक्स्ट कर सकते हैं. यानी कि 2 बजे कह रहे हैं कि डाउट एकदम से आया, क्योंकि जो है रात को 2 बजे हम अवेलेबल नहीं होंगे. ठीक है, टेक्स्ट आप कर दे. टेक्स्ट तो जब भी होगा पूछ लेंगे. कोपल डाउट है कुछ? सर डाउट है, वो आपने कोऑपरेटिव्स का इलेक्शन वाला क्वेश्चन जो पूछा था, उससे एक याद आया, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके जो आरपीए में रूल्स दिए गए थे कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आरपीए में दिए गए थे प्रोविजंस. पढ़ेंगे. अभी आएगा ना, इलेक्शंस पे भी पहुंचेंगे. जब इलेक्शंस में आएंगे तब आरपीए को भी पढ़ लेंगे साथ साथ. ठीक है, चलिए, विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू वेरी मच.